جہاں ہم ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انٹرویو میں ہے ساجد رسول صاحب، جن کے پاس فیلڈ ایکسپیرینس بھی ہے اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں پڑھانے کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو ہم آج ان کا انٹرویو لیں گے، وہ آج اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیں گے۔ جی ساجد صاحب۔ الحمدللہ۔ جانزیب صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر۔ تھینک یو، آپ نے مجھے انٹرویو میں انوائٹ کیا۔ آج ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، تو ٹائم ضائع کرے بغیر جو ہے ہم پہلا سوال کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی سر۔ تھینک یو جانزیب صاحب۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ہے اور میں نے ڈپلومہ ملتان سے کیا ہے، اور میرا جو گریجویشن ہے وہ بھی میری ملتان سے BZU سے ہے۔ تھینک یو۔ ہمارا اگلا سوال ہے آپ سے کہ آپ کا سفر کس طرح شروع ہوا؟ آپ پہلے کنسٹرکشن فیلڈ میں تھے، اس کے بعد آپ تعلیمی میدان میں آئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ، تو یہ سفر کیسے تبدیل ہوا؟ جانزیب صاحب ایسے ہے کہ میں نے تقریباً 8 سے 9 سال فیلڈ میں گزارے ہیں۔ جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا تو ہمیں جو ٹیچر پڑھاتے تھے ان کے پاس اسکل نہیں تھا، اور اس چیز کو میں نے جب فیلڈ میں گیا، میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک ٹیچر بننا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے میں اسکل لوں۔ تو مجھے یہ چیز بار بار پریشان کرتی تھی کہ جو چیز مجھ میں کمی رہ چکی ہے وہ کسی اور میں نہ رہے، جو کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں اپنا ڈپلومہ کلیئر کر کے، ان کو فیلڈ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ایز اے ٹیچر ان بچوں کو گائیڈ کر سکوں کہ ڈپلومہ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اس طرح میرا سفر سٹارٹ ہوا ہے۔ میں نے اپنا ایکسپیرینس گین کر میں فیلڈ میں اپنی جو ایجوکیشن فیلڈ ہے وہاں پر میں نے کوشش کی میں کہ یہاں، اور میں نے PPSC کے ایگزام کلیئر کر کے اس کو جوائن کیا۔ جی بہت بہتر ہو گیا، یہ تو ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر جو آپ کا فیلڈ ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے بچوں کے آج کام آ رہا ہے۔ تو ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے بطور سپروائزر اور کوانٹٹی سروے کام کیا ہے، اس تجربے سے آپ کی شخصیت اور سوچ پر کیا اثر ڈالا؟ ہاں، بہت زیادہ، کیونکہ جب میں اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا تھا اس وقت بھی، اور مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے فیلڈ جوائن کیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار مجھے فیلڈ کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ میں نے مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے، مختلف سٹیز میں پاکستان میں کام کیا ہے، تو اب میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جو میں نے ایکسپیرینس گین کیا ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کر سکوں، تاکہ ان کے اندر جو احساس محرومی ہے کہ ڈپلومے میں نہیں ہوتی، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس اسکل نہیں ہے۔ تو بالکل یہ صحیح مجھے صحیح۔ بڑا فائدہ ہوا اور میں بڑا ہوپ فل ہوں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کہ آپ کو GCT ملتان جوائن کرنے کا موقع کیسے ملا؟ ہاں، GCT ملتان میں میری بڑی خواہش تھی، کیونکہ میں نے یہاں سے پڑھا ہے اور میری خواہش تھی کہ میں یہاں آ کر ٹیچنگ کروں۔ اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ جیلم میں تھا، اور میں نے کوششوں سے اور اپنے ایکسپیرینس گین سے کہ میں پہلے وہاں ایکسپیرینس گین کروں ٹیچنگ، کیونکہ ٹیچنگ آسان ٹاسک نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ اس میں میں کامیاب ہوا، اور آج میں GCT ملتان میں ہوں، اور یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی وہ پوری ہوئی یہاں پر آنے کی۔ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب جب آپ نے پہلی بار تعلیمی میدان میں قدم رکھا تو آپ کے خیالات اور جذبات کیسے تھے؟ ہاں، آپ ٹیکنیکل فیلڈ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، پریکٹیکل فیلڈ میں چونکہ آپ نے تعلیمی میدان میں آ گئے تو ایک دم سے فیلڈ آپ تعلیمی میدان میں آئے ہیں، تو کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ جذبات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ایز اے ٹیچر کام کروں ایز اے ٹیکنیکل فیلڈ۔ تو میں یہ جو خوشی ہے ابھی تک فیل کر سکتا ہوں،
जो मेरी ख्वाहिश थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पूरी करता है। तो बेशक। आज मैं जीसीटी मुल्तान में कर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो मेरे पास नॉलेज है, तो वो कोशिश करता हूँ कि मैं डिलीवर करूँ। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, तालीमी मैदान में आपके 8 साल आपने गुज़ारे हैं। इस 8 साल के दौरान कोई आपने अपने अंदर कोई मस्बत तब्दीली महसूस की हो? जी, जी, बहुत। मैं बड़ा जज़्बाती लड़का था और हर वक़्त मतलब लड़ाइयों में और ऐसे दोस्तों से मेरा ताल्लुक था। जैसे मैंने फ़ील्ड जॉइन की, मेरी वो सारी गैदरिंग ख़त्म हो गई और मुझे जो टेक्निकल एक्सपीरियंस हासिल हुआ, जो मेरी एक बचपन से ख्वाहिश थी, बचपन से मतलब स्टूडेंट से जो हमें एहसास महरूमी थी कि मेरी ख्वाहिश यही थी कि बस मैं किसी न किसी तरह एज़ अ टीचर बन जाऊँ और अपना जो जो मैंने कुछ गेन किया है फ़ील्ड से, वो मैं बच्चों में डिलीवर कर सकूँ। आज मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपने माशाल्लाह आपके पास टीचिंग फ़ील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपके इस एक्सपीरियंस में अगर आपको मैं कहूँ कि आपके नज़दीक एक अच्छे उस्ताद की सबसे अहम ख़ुसूसियत क्या होनी चाहिए? हाँ, जाज़े साहब अच्छा क्वेश्चन है। मेरी नज़र में सबसे अच्छे टीचर की ख़ुसूसियत एज़ अ एक्सपीरियंस हो फ़ील्ड का। क्योंकि टेक्निकल फ़ील्ड इसके बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस के बगैर। आप नॉलेज किताब से ले लेते हो, लेकिन जो टेक्निकल फ़ील्ड जो एक्सपीरियंस है, जब तक आप फ़ील्ड में काम नहीं करोगे, आप बच्चों को डिलीवर नहीं कर सकते। उसमें फिर यही होता है कि हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि बच्चे अक्सर कहा जाता है कि जनाब डिप्लोमा कर लें, आपको जॉब नहीं होगी। उसकी सिर्फ़ यही वजह है कि जो टीचर हैं हमारे पास, वो वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वर्ल्ड टेक्निकल नहीं है, जिसकी वजह से एहसास महरूमी पाई जाती है। वेल सेड, वेल सेड। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अच्छा, अगर एक और सवाल है कि अब तुलबा के साथ जैसा है, वो एक अच्छा ताल्लुक कायम करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? आप उसके साथ दोस्त बन जाएँ उसके। आप मैं कहता हूँ आप उस बच्चे से आप जो उसके अंदर जो चीज़ कमी है, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी कोशिश करेंगे वो ख़त्म करेंगे। जब तक आप दोस्त नहीं बनेंगे उसके, उस वक़्त तक आप कभी भी उस बच्चे को जो एक डल बच्चा है, उसको एक स्किल्ड लेवल का बच्चा बनाने के लिए आपको दोस्त बनना पड़ेगा। दोस्त के बगैर गुज़ारा नहीं है। यानी कि उनके साथ दोस्ती कर ली जाए। जी, दोस्ती उनके अच्छा, साथ उनके जैसा बन जाएँ आप। यानी कि उनके लेवल पर आकर उनको समझाएँ। हाँ जी, उसको लेवल पर आना पड़ेगा आपको। नहीं, अब क्लास के अंदर कभी ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चे जो हैं उनका दिल नहीं लग रहा होता, वो मुतहर्रिक नहीं होते, दिलचस्पी नहीं ले रहे होते पढ़ाई के अंदर। तो उसके लिए कौन-सी टेक्निक इस्तेमाल की जाए कि बच्चे एक्टिव होकर हमारा लेक्चर सुनें? हाँ, मैं अक्सर औक़ात ऐसे करता हूँ, बच्चों से उनसे गप-शप करना शुरू कर देता हूँ, उनसे मुतल्लिक़ा फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे कहता हूँ कि जनाब आप बताएँ आपकी हॉबीज़ क्या हैं? और चलें मैं आज आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ या मैं आपको कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। उससे बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और इसी दौरान मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ और बच्चों को समझ में आ जाता है। हुँ, बेहतरीन। यानी कि आप कह रहे हैं कि बच्चों के लेवल पर बच्चे जो चीज़ बच्चों का दिमाग जिस चीज़ के खुश होता है, उसको आप अपने लेक्चर के साथ लिंक कर लेते हैं ताकि उसमें दिलचस्पी पैदा हो सके। जी, बिल्कुल, लेकिन लिमिट क्रॉस ना हो। एक स्टूडेंट, एक टीचर के दरमियान में जो लिमिट्स हैं, वो क्रॉस ना हो। जब तक आप उस स्टूडेंट के लेवल पर नहीं जाएँगे ना, तो आप उस बच्चे को समझ नहीं पाएँगे। तो बच्चे को समझना पहला ज़रूरी है। सही, सही, सही। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आपको अपने तालीमी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार लम्हा, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, बस ये है लम्हा क्या ये है कि जब हम डिप्लोमा करते हैं, तो हमें बहुत से हमारे टीचर्स हमें कहा जाता है कि आप जैसे डिप्लोमा करोगे आप तो आप एक को गाड़ी मिल जाएगी, एक घर मिल जाएगा, एक मिडल घराने से जो लोग होते हैं वो ज़रा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप उस लेवल पर नहीं पहुँचेंगे।
लेकिन एक यादगार लम्हा मेरी टेक्निकल फील्ड से ये भी है कि जब मैंने डिप्लोमा जैसे क्लियर किया तो पहला दिन मेरा था, तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही मैन होल जो होता है उसमें उतार दिया और कहा कि आप गटर लाइन की साउंडिंग चेक करें। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ और ही कहा गया था। और बस वो खाना बीच में नहीं लेकर आया, पर्सनल नहीं हुआ, और जाकर साउंडिंग चेक की। इस तरह के और भी बहुत से हैं, तो जो बच्चे अक्सर कहते हैं कि यार फील्ड में बहुत मिट्टी है, सारा दिन है, कुछ पाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो सही। आप उसका अच्छा नहीं चलिए, पहुँचते। मैं हम अक्सर अपने बच्चों को नेक्स्ट यूँ क्वेश्चन कहता की हूँ। तरफ। जी, जी, जी। आपके ख्याल में टेक्निकल एजुकेशन जो है पाकिस्तान में नौजवानों के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है? बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। देखें, ये आपकी एक इसे कहते हैं कि हमारा एक पर्सनल मैटर हो जाता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप वो पैरामेडिकल में जाते हैं, मेडिकल फील्ड में जाते हैं, या किसी और फील्ड में जाते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। तो टेक्निकल फील्ड में भी आपकी स्पेशलाइजेशंस होती है कि आपकी महारत किस में है। तो उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने गल्फ ममालिक में जाना है तो आपको बगैर टेक्निकल स्किल के आपको जो वो आपको एज ए लेबर यूज़ करते हुँ, हैं, चाहे आपने बीएससी इंजीनियरिंग क्यों ना की हो। तो जब तक स्किल्ड नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकल टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आज की जैसे मौजूदा दौर के अंदर हमारे पास तमाम फ़ील्ड्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। आजकल हमारे पास एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें हम चैट जीपीटी हो गई या परप्लेक्सिटी हो गई। आजकल बच्चे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके नज़दीक बच्चों के पास सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों की भी स्किल्स होनी चाहिए? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए। एआई तो एक बहुत बड़ा कारनामा है जो पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, और रेहान अल्लाह वालों ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये नॉलेज होना चाहिए, ये आसान कर देता है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स तो तकरीबन हैं, इस आपको इसके नॉलेज होना चाहिए। सही। नहीं, हमारे पास इसी के अंदर एक सवाल बनता है कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी फ़ील्ड में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि प्राइमावीरा है या जी, 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 माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस बिल्कुल। वगैरह है, टैब्स वगैरह है, तो बच्चों को इन सॉफ्टवेयर्स को भी सीखना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये देखें, आई थिंक डिप्लोमा में ये जो आप बताएँ प्राइमावीरा, ये हमारे कोर्स का हिस्सा भी है, और अगर इसे आप मार्केट से करते हैं, आई थिंक इसकी कॉस्ट है 2 लाख के आसपास है। और टेक्निकल फील्ड में ये बिल्कुल आपको फ्री करवाया जा रहा है, क्योंकि इसका यूज़ है फील्ड में। गाल्फ ममालिक में तो बहुत है। एज ए आप क्वांटिटी सर्वेयर को देखें, तो आपके लिए सारे चैलेंजिंग हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं प्राइमावीरा के थ्रू। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमारी टेक्निकल फ़ील्ड के लिए आज के टाइम पे बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि हमें उन्हें वर्क के साथ-साथ सीखना चाहिए। जी, 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 ये जो कोर्स डिज़ाइन हुआ हुआ है, टफ्टन ने जो डिज़ाइन करवाया है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है इसमें फील्ड में। और जो नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, उससे मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी इख्तिताम की तरफ चलते हैं। बस आप हमारे ज़ायरीन के लिए कोई पैगाम जी, जी। देना चाहेंगे हमारी एजुकेशन फ़ील्ड के लिए, कोई 2 लाइनें? फिर हम वाइंड अप करते हैं सर। जी, जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, आ रहे हैं, प्लीज़ इसे आप डीपली देखें, ख़ास तौर पे हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं उससे, क्योंकि जब आप जस्ट थ्योरी पढ़कर जाओगे, तो बेटा आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो कोर्स से मुतल्लिक़ा जो आप ना पढ़ी हो या आप फील्ड में ना करें।
تو آپ پلیز اس چیز پہ دھیان ضرور دیں کہ جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے وہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے آنے والی فیلڈ کے لیے جو روزگار آپ کو مہیا ہونا ہے اس سے متعلقہ ہے۔ تو بس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جو لیکچر پڑھیں کلاس میں وہ لیکچر سنیں ضرور آپ۔ بہت بہت بس شکریہ میں اتنا ساجد ہی صاحب کہنا اتنا چاہتا ٹائم ہوں۔ دینے کے لیے آپ کو۔ تھینک یو۔ اوکے، اللہ حافظ۔